آج کی بات چیت کا جو مول مرکز ہے وہ ہے پی ٹی سی ایل اور ٹیلینور پاکستان کا انضمام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پی ٹی سی ایل کے جو تازہ ترین مالیاتی نتائج آئے ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں گے، اور وہ جو اتصالات والا پرانا معاملہ ہے نجکاری کا، اس کا کیا بنا۔ مقصد بس یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ذرا گہرائی میں سمجھا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی انضمام والی بات۔ سی سی پی نے 1 اکتوبر 2025 کو باقاعدہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی بتا دیا۔ یہ منظوری ہے پی ٹی سی ایل کو، ٹیلینور پاکستان اور اس کے ساتھ جو اورینٹ ٹاورز ہیں ان کے 100% شیئرز خریدنے کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ منظوری آئی ہے ایک تفصیلی فیز 2 جائزے کے بعد۔ یہ وہ جائزہ ہوتا ہے جو کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت تب کیا جاتا ہے جب خدشہ ہو کہ مارکیٹ میں مسابقت پر کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ منظوری بس ایسے ہی دے دی ہے، اس کے ساتھ کوئی شرائط وغیرہ بھی ہیں؟ نہیں، یہ غیر مشروط بالکل نہیں ہے۔ سی سی پی نے کافی سخت قسم کی شرائط لگائی ہیں، اور ان کا مقصد بنیادی طور پر یہی رکھتا ہے کہ مارکیٹ میں مقابلہ بازی رہے، کوئی ایک کمپنی حاوی نہ ہو جائے، اور یہ کہ صارفین تک اس انضمام کا فائدہ پہنچے۔ اور پی ٹی سی ایل نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ان شرائط پر عمل کریں گے۔ اچھا، یہ شرائط ہیں کیا؟ مطلب کچھ خاص ہے ان میں؟ جی، کچھ چیزیں تو واقعی قابل غور ہیں۔ جیسے ایک تو یہ کہ پی ٹی سی ایل اور جو نئی کمپنی بنے گی انضمام کے بعد، جسے وہ مرج کو کہہ رہے ہیں، دونوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز الگ ہوں گے اور انتظامیہ بھی بالکل آزاد ہوگے۔ مطلب کافی حد تک خود مختار رہیں گی دونوں۔ پھر جو سی ای اوز اور سینئر مینجمنٹ ہیں ان کے لیے بھی کافی سخت معیار رکھے گئے ہیں قابلیت اور دیانتداری کے حوالے سے۔ یہ تو انتظامی سطح کی بات ہوئی۔ جی، اور اس سے بھی اہم شاید یہ ہے کہ ان شرائط پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی نگرانی کے لیے 5 سال تک ایک بالکل آزاد تھرڈ پارٹی ریویور مقرر کیا جائے گا۔ 5 سال کے لیے؟ جی ہاں، پورے 5 سال، اور وہ براہ راست سی سی پی کو رپورٹ کرے گا۔ تو یہ نگرانی کافی سخت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپس میں لین دین یعنی ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز اور ایک دوسرے کو سبسڈی دینے پر پابندی ہوگی۔ ہاں، اگر وہ بالکل مارکیٹ ریٹ پر عام لینتھ بنیاد پر ہوں تو ٹھیک ہے، اور تمام آپریٹرز کو انٹر کنیکشن اور انفراسٹرکچر شیئرنگ تک یعنی ٹاور وغیرہ تک رسائی دینی ہوگی بغیر کسی امتیاز کے۔ قیمتوں میں بھی امتیاز نہیں کر سکتے، بلکہ پی ٹی سی ایل کو اپنی ہول سیل قیمتیں پی ٹی اے سے منظور کروانی ہوں گی۔ اچھا جی، اور آخر میں انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو فائدے جو بچت اس انضمام سے ہو رہی ہے وہ واقعی صارفین تک پہنچ رہی ہے، بہتر سروس، بہتر قیمت، نئی سرمایہ کاری کی شکل میں۔ سی سی پی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ اثاثے بیچنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت ہی جامع اور سخت قسم کی نگرانی لگ رہی ہے۔ اچھا، تو اس انضمام کے بعد مارکیٹ کیسی دکھے گی؟ مطلب کون کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، اس کے بعد یو فون اور ٹیلینور مل کے ایک بہت بڑا آپریٹر بن جائیں گے۔ ان کا مارکیٹ شیئر تقریباً جاز کے برابر ہو جائے گا، جی، اور زونگ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر چلا جائے گا۔ سی سی پی نے خود مانا ہے کہ اس سے مارکیٹ میں چند کمپنیوں کا کنٹرول بڑھے گا، ارتکاز یعنی کانسنٹریشن بڑھے گی، اور خدشات بھی ہیں غلبے کے۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ جو شرائط لگائی ہیں یہ ان خدشات کو کم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان شرائط پر صحیح عمل ہوا تو اس سے کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، سروس اچھی ہو سکتی ہے، لاگت کم ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس پورے جائزے میں تقریباً 18 مہینے لگے۔ 18 مہینے؟ جی، جو کہ بین الاقوامی سطح پر ایسے بڑے سودوں کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ جیسے برطانیہ میں ووڈافون 3 والے کیس میں 23 مہینے لگے، امریکہ میں اسپرنٹ ٹی موبائل میں 22 مہینے۔ تو یہ ٹائم لائن اسی حساب سے ہے۔ صحیح، یہ تو ہوئی مستقبل کی بات کہ انضمام کے بعد کیا ہوگا، لیکن ابھی حال میں پی ٹی سی ایل کی اپنی مالی حالت کیسی ہے؟ جو 9 مہینوں کے نتائج آئے ہیں ستمبر تک کے، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ جی، جو تازہ ترین نتائج ہیں 30 ستمبر 2025 تک کے 9 مہینوں کے، وہ تھوڑے ملے جلے ہیں۔ ایک طرف تو آمدنی میں اضافہ ہوا ہے جو اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن دوسری طرف کمپنی نے تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے کا خالص نقصان دکھایا ہے۔ نقصان؟ پچھلے سال تو منافع تھا شاید۔ جی ہاں، پچھلے سال اسی عرصے میں تقریباً 1 ارب روپے کا منافع تھا، تو یہ بالکل الٹ ہے۔ فی شیئر کے حساب سے دیکھیں تو 0.24 روپے کا نقصان ہے، جبکہ پچھلے سال 0.20 روپے فی شیئر آمدنی تھی۔ تو اگر آمدنی بڑی ہے تو پھر اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا؟ وجہ کیا بنی؟ بالکل یہی سوال بنتا ہے۔ دیکھیں، آمدنی تو 12.65% بڑھی ہے، 89.60 ارب روپے تک پہنچ گئی، اور گراس پروفٹ
यानी मजमूई मुनाफा, वो तो 30% से भी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जो खिदमात फराहम करने की लागत थी, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, वो निस्बतन कम बढ़ी, सिर्फ 6.67%। तो फिर मसला कहाँ आया? मसला आया ऑपरेटिंग अखराजात में और एक बहुत बड़ी यकवक्ती लागत में। इंतज़ामी और उमूमी अखराजात तकरीबन 15% बढ़ गए, सेल्स और मार्केटिंग के अखराजात भी तकरीबन 13% बढ़े। लेकिन सबसे बड़ा जो धचका लगा वो था पेंशन की मद में। कंपनी ने इस अरसे में 5.89 अरब रुपए की माजी की सर्विस लागत यानी पास सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड की। 5.89 अरब रुपए? ये पेंशन की लागत कहाँ से आई? जी, ये एक पुराना मामला है जिसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म से है जो 10 जुलाई 2025 को आया था। अदालत ने कंपनी को कहा था कि वो इन साबिक सरकारी मुलाजमीन के पेंशन वाजिबात को तस्लीम करे जो पहले पुराने टीएनटी डिपार्टमेंट में थे, फिर कॉरपोरेशन बने और फिर निजकारी के बाद कंपनी में आए। तो ये बुनियादी तौर पर उनकी पेंशन को दूसरे सरकारी मुलाजमीन के बराबर लाने का फ़र्क है जो अब अदा करना पड़ रहा है। अच्छा, यानी ये कोई नया खर्चा नहीं, पुराना हिसाब किताब है जो अब सामने आया है। जी बिल्कुल, ये तफसील जून 2025 की जो शशमाही रिपोर्ट थी उसके नोट्स में भी दी गई थी। वैसे इसी रिपोर्ट में एक और चीज़ का भी जिक्र था। वो सीसीपी ने LDICH ऑपरेशंस यानी जो बैनुल-अक़वामी कॉल्स का निज़ाम है उस पर कोई 459 मिलियन रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वो भी अगस्त 2025 में ट्रिब्यूनल के हुक्म पर हुआ है। तो ये पेंशन का मामला तो एक तारीखी बोझ है जो अब तक चल रहा है। शशमाही नताइज कैसे थे फिर जून तक के? जी, 30 जून 2025 को ख़त्म होने वाली शशमाही के नताइज भी तकरीबन यही कहानी बता रहे थे। PTCL ग्रुप की जो मजमूई आमदनी थी वो 16% बढ़ी थी, 124.6 अरब रुपए। इसमें फ्लैश फाइबर का बड़ा हिस्सा था, 62% इजाफा, बिजनेस सॉल्यूशंस 15%, यूफोन 17% और यूबैंक 25% बढ़े थे। ये तो मुस्बत है। जी, और ग्रुप का ऑपरेटिंग मुनाफा भी 9.8 अरब रुपया था जो पिछले साल से बेहतर था। लेकिन फिर वही बात, एक तो ये पेंशन वाले वाजबात की इजाफी रकम रिकॉर्ड हुई और साथ में यूबैंक के जो मुतवक्का क्रेडिट नुकसान है यानी ECL, वो रकम जो बैंक मुस्तकबिल के मुमकिना डूबने वाले कर्जों के लिए अलग रखते हैं, उन दोनों की वजह से ग्रुप को मजमूई तौर पर 9.9 अरब रुपए का बड़ा नुकसान हुआ। समझ गई। तो ये पेंशन और ECL जैसे मामला तो शायद कंपनी के बराह रास्त कंट्रोल में भी ना हो। अच्छा, एक और बहुत पुराना मसला है, वो इत्तिसालात के साथ निजकारी वाला तनाज़ा। उस महाज पर क्या चल रहा है? कोई पेशरफ्त हुई? हाँ जी, ये वाकई एक बहुत तवील और पेचीदा कहानी है जो 2005 से चल रही है। जब मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी इत्तिसालात में PTCL के 26% शेयर्स और इंतजामी कंट्रोल खरीदा था 2.6 अरब डॉलर्स में। लेकिन उस रकम में से तकरीबन $800 मिलियन आज तक रुके हुए हैं। $800 मिलियन? क्यों रुके हुए हैं? वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान मुआहदे के मुताबिक तमाम मुत्तफ़िका जायदादें पूरी तरह क्लियर टाइटल के साथ इत्तिसालात को मुंतकिल नहीं कर सकी। तो अब क्या सूरत हाल है? कोई हल निकल रहा है? जी, जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनसे लगता है कि दोनों पार्टियां अब किसी न किसी तस्वीर पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, संजीदा कोशिशें। अब जो बुनियादी मसला रह गया है वो 33 जायदादों का है जो मुंतकिल नहीं हो सकी, शॉर्टफॉल प्रॉपर्टीज जिन्हें कहते हैं। अच्छा, लेकिन अब उनकी कीमत पर इख्तलाफ है। इत्तिसालात कहती है कि इन 33 जायदादों की कीमत तकरीबन 31 अरब रुपए है, यानी कोई 138 मिलियन डॉलर्स, जबकि हुकूमत पाकिस्तान का अंदाजा सिर्फ 9.2 अरब रुपए है, यानी 41 मिलियन डॉलर्स के करीब। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, काफी बड़ा फर्क है। तो इस नए हिसाब किताब के बाद इत्तिसालात का अंदाजा है कि जो रकम अब वाजिबुल अदा है वो कम होकर तकरीबन 536 मिलियन डॉलर रह गई है। 800 मिलियन से कम होकर। ठीक है। उसके अलावा एक और बात भी है। इत्तिसालात ये भी चाहती है कि PTCL को बाज़ाब्ता तौर पर निजी शोबे की कंपनी करार दिया जाए, जिसके लिए शायद कुछ रेगुलेटरी कानून बदलने पड़े, पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़े, कुछ और छोटे मोटे मामलात भी हैं जैसे जायदादों का किराया वगैरह। अगर कोई समझौता नहीं होता तो फिर ये मामला लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकता है, जैसा कि असल मुआहदे में लिखा था। तो इस केस का जो भी नतीजा निकलेगा वो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में होने वाली निजीकारी और गैर मुल्की सरमायाकारी के एतमाद के लिए बहुत अहम होगा। बिल्कुल, ये वाकई एक बड़ा मामला है जिसका हल होना जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई PTCL की बात। टेलीनॉर इंजमाम की खबरों के बीच में क्या वो कुछ नया ला रहे हैं? जी हाँ, ये काफ़ी दिलचस्प है कि इंजमाम का अमल चल रहा है, लेकिन टेलीनॉर पाकिस्तान ने सार्फिन के लिए एक नई सहूलत शुरू की है। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सिम खरीदने या अगर सिम गुम हो गई है तो उसे तब्दील करवाने
और मोबाइल बंडल सब्सक्राइब करने की सर्विस मुतारिफ करवाई है। व्हाट्सएप पर ये कैसे काम करता है? जी, ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल है। सारिफ व्हाट्सएप पर उनके एक मखसूस नंबर पर राब्ता करता है। वहाँ वो अपना शहर बताता है, अपनी पसंद का नंबर मुंतखब कर सकता है, बंडल चुन सकता है, फिर वहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर देता है और सिम उसके घर पर डिलीवर हो जाती है। और बायोमेट्रिक तस्दीक भी डिलीवरी के वक्त ही हो जाती है। जबरदस्त। ये सिम डिलीवरी वाली सर्विस तो फिलहाल 20 से ज्यादा शहरों में है, लेकिन जो बंडल रिचार्ज है वो पूरे मुल्क में कहीं से भी किया जा सकता है। तो ये सारिफीन के लिए काफी आसानी पैदा करने वाला कदम है। यकीनन ये तो जद्दत तराजी की अच्छी मिसाल है। अब जब यूफोन टेलीनॉर मिलकर इतने बड़े हो जाएंगे तो जोंग का क्या रद्द अमल है या उनकी क्या हिकमत अमली नजर आती है? वो तो अब तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। जी, जोंग 4G जो चाइना मोबाइल का हिस्सा है, वो इस सूरत हाल को एक चैलेंज के तौर पर भी देख रहा है और एक मौके के तौर पर भी। उनकी जो हिकमत अमली नजर आती है वो सिर्फ सब्सक्राइबर नंबर बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि वो अपनी तकनीकी बढ़तरी और डिजिटल माहौल को बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तकनीकी बढ़तरी से क्या मुराद है? वो अपनी उन चीज़ों को सामने लाते हैं जो उन्होंने पहले की, जैसे पाकिस्तान में पहली 4G सर्विस उन्होंने शुरू की, वोल्टी यानी 4G नेटवर्क पर बेहतर क्वालिटी की वॉइस कॉल्स वो मुतारिफ करवाईं, 5G टेक्नोलॉजी के कामयाब ट्रायल्स किए। उनका कहना है कि चूंकि उनके पीछे चाइना मोबाइल की आलमी ताकत है, तो वो अगली नस्ल की कनेक्टिविटी यानी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है। सही। जोंग की जो हेड ऑफ स्ट्रेटजी है नबीला यजदानी, उन्होंने हाल ही में एक बयान में ये भी कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो कोई एक ऑपरेटर पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए हुकूमत की तरफ से अच्छी पॉलिसियां चाहिए, वक्त पर स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए और पूरी इंडस्ट्री को मिलकर काम करना होगा। उनका जो विजन है वो है पाकिस्तान में बेहतरीन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनी बनना। तो बज़ाहिर वो पायदार सरमायाकारी, नई चीजें लाने यानी जिद्दत तराजी और कस्टमर के एतमाद पर तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा करें, PTCL टेलीनॉर का इंजमाम मंजूर हो गया है, लेकिन बहुत सख्त शराइत के साथ। इससे मार्केट का नक्शा बदल रहा है, मुकाबला की शक्ल भी शायद बदले। PTCL की आमदनी तो बढ़ रही है, लेकिन वो पेंशन जैसे पुराने बोझ की वजह से फिलहाल माली दबाव में है, नुकसान में है। इत्तिसालात वाला दहाइयों पुराना मसला हल के करीब लगता तो है, लेकिन अभी भी गैर यकीनी है। और दूसरी तरफ टेलीनॉर और जोंग जैसी कंपनियां नई सहूलियात और टेक्निकल पोजीशनिंग पर काम कर रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आने वाला वक्त वाकई बहुत अहम है। अब देखना यह है कि CCP ने जो शराइत लगाई हैं उन पर अमल दरामद कैसे होता है, खासतौर पर मुकाबलाबाजी और सारिफीन के हुकूक के हवाले से। क्या इस इंतजाम से वाकई सारिफीन को कोई फ़ायदा होगा, बेहतर सर्विस मिलेगी, कीमतें कम होंगी? और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या PTCL अपने इन पुराने पेचीदा मसाइल, खासतौर पर इत्तिसालात वाला तनाज़ा और ये पेंशन वाले वाजिबात, इनसे निकल पाएगा? क्या वो दोबारा मुसलसल मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन सकेगी? ये वो अवामिल हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर का मुस्तकबिल तय करेंगे। यहाँ एक और बात भी सोचने वाली है। क्या ये मुमकिन है कि ये जो सख्त शराइत CCP ने लगाई हैं, ये गैर इरादी तौर पर कंपनियों को उस दौड़ से हटा दें कि बस कीमत कम करो या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल करो, अब मखसूस खिदमात पर तवज्जो देने पर मजबूर हो जाएं? हो सकता है वो ख़ास डिजिटल सोल्यूशंस लाएं, कस्टमर सर्विस को बहुत बेहतर करें या मार्केट के मखसूस हिस्सों के लिए टारगेटेड ऑफर्स बनाएं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रेगुलेटरी दबाव मार्केट में ज़्यादा वैरायटी और हकीकी जिद्दत तराजी लाता है या नहीं। ये था आज का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर कंपनी का ऑनेस्ट और सिंपल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन मिलता रहे।